United States ended 20 years of war in Afghanistan. جی السلام علیکم. پروگرام میں آج بات کریں گے پی ڈی ایم نے آج اب سے کچھ دیر پہلے ابھی بھی جاری ہے سپریم کورٹ کے باہر ایک جلسہ رکھا ہوا ہے جہاں پہ سپریم کورٹ کے انصاف کے دوہرے معیار کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, اس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ پی ڈی ایم کے مطابق مبینہ طور پہ سپریم کورٹ سے جس طرح سے ایک انڈیو فیور, انڈیو جسٹس پرووائڈ کیا جا رہا ہے, انصاف کا دوہرا معیار پرووائڈ کیا جا رہا ہے عمران خان کے لیے, تو ان سب معاملات کے حوالے سے, ان سب معاملات کے خلاف پی ڈی ایم اس وقت ایک جلسہ کر رہی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جلسہ دھرنے کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے. اس جلسے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے مریم نواز صاحبہ, مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر, ان سے کچھ سوالات کیے اس جلسے کے حوالے سے اور آئندہ ہونے کیا چاہ رہا ہے. سنیے گا. السلام علیکم مریم نواز صاحبہ, کیا یہ سپریم کورٹ پر ایک اور حملہ ہے؟ کیا چیف جسٹس کو ایک اور دھمکی ہے؟ دھمکی تو نہیں ہے, ہم تو فیکٹس بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے, اور ان کو اگر آپ آرگیومنٹ سے ریفیوٹ کر سکتی ہیں تو کر دیں. میں نے تو ایسے فیکٹس بیان کیے ہیں جو پورے قوم کے سامنے ہیں, جس کا مظاہرہ خود چیف جسٹس نے خود کر دیا, اس کے ثبوت یہاں سے ملے ہمیں. چیف جسٹس کہتے ہیں کہ میرا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمیں سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے, آئین بحال ہونا چاہیے, آئین جو ہے اپ ہولڈ ہونا چاہیے, اور انتخابات 90 دن کے اندر ہو. وہ کہتے ہیں معیشت کا حال دیکھیں, موٹر وے ساری خالی پڑی ہے جو نواز شریف نے بنائی تھی. اس کے لیے عمر عطا بندیال صاحب اور ان کا لاڈلا ذمہ دار ہیں. جب سے وہ لاڈلا سیاست میں آئے ہیں اس کو سہولت کاری ملی ہے. پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ ٹریک سے اتر جاتا ہے, انتشار کا نشان ہے, فتنے کا نشان ہے. پاکستان کی پالیٹکس میں یہ ایک نہایت ہی, میں کہتی ہوں کہ نقصان دہ ایڈیشن ہے, اور اس فتنے کی پہلے پرورش جو ہے وہ جنرل فیض اور باجوہ نے کی تھی. اب اس کی پرورش جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا ہوش و حواس میں کوئی ہوش و حواس رکھنے والا شخص وہ چیز کس طرح کر سکتا ہے جو عمر عطا بندیال صاحب کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس دن جو قوم نے دیکھا, مرسیڈیز گاڑی منگوائی, ایک دفعہ پوچھا کہ تم جو یہاں پر آئے ہو تمہیں کس کیس میں لایا گیا؟ کہا گیا کہ گرفتاری غلط طریقے سے ہوئی ہے, غیر قانونی ہوئی ہے. تو بھئی کہاں سے گرفتاری کریں؟ زمان پاک گرفتار کرنے جاتے ہیں تو وہاں سے لوگوں پہ پیٹرول بامز برسائے جاتے ہیں, وہاں سے لوگوں پر شیلنگ ہوتی ہے, وہاں سے لوگوں پر پتھر برسائے جاتے ہیں. یہاں سے گرفتار کیا تو کورٹ سے کیوں گرفتار کیا؟ تو کیا کریں؟ شالامار باغ لے جائیں, وہاں چہل قدمی کریں, وہاں سے گرفتار کریں, کیا کریں؟ جب اس قسم کے وہ آئین کو ری رائٹ کریں گے, اس حد تک جائیں گے کہ آئین کا حلیہ بگاڑیں گے, لاڈلے کو ریلیف دینے کے لیے سپریم کورٹ کے اندر بغاوت کسی صورتحال پیدا کر دیں گے, جب ایک شخص کو ریلیف دینے کے لیے پورے پاکستان میں وہ آگ لگوا دیں گے اور پھر کہیں گے کہ اس کا قصور نہیں ہے, تو اور ہم کیا سمجھیں اس چیز کو؟ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں دوبارہ, اس کا بھی جواب دے دیجئے. کیا عمران خان مذاکرات آئی تھنک غریدہ ان کو اپنے فیلو ججز سے کرنے چاہیے جو ان کے خلاف بغاوت کر چکے ہیں. پہلے ان سے مذاکرات کرے, ہمیں مذاکرات کے بعد میں کہے, ہمیں پتہ ہم نے کیا کرنا. چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس بھی آج جو ہے وہ جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ دہشت گردوں سے مذاکرات ہوتے ہیں, بلوائیوں سے مذاکرات ہوتے ہیں, ان کا علاج ہوتا ہے. کیا چیف جسٹس کا کسی اور طریقے سے مواخذہ بھی ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو چیز کی آئین اور قانون اجازت دیتا ہے وہ ہمیں ان کو نکالنے کے لیے استعمال کرنی چاہیے. کیا عمران خان کو دوبارہ گرفتار ہونا چاہیے باوجود اس کے ان کو تمام ضمانتیں مل گئی ہیں؟ آپ نے کہا ازل سے ابد تک جو گناہ کیے, جو گناہ کرنے ہیں, سب کی ضمانت, تو دوبارہ گرفتاری ہونی چاہیے. دیکھیں جو پاکستان کا سب سے بڑا چور ہے, لوگوں کو چور چور کہتا رہا اور خود چپ کر کے وہ سارے چوریاں ڈاکے گھر والی سمیت کر کے چلا گیا, تو بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچے گا. اور یہ جو وہ خوشیاں منا رہے تھے نا کہ یہ رہا ہو گیا, اس میں جو انہوں نے پورے پاکستان میں جو آگ لگائی ہے, جو انہوں نے دہشت گردی کی ہے, انہوں نے اپنے لیے بہت سنگین جو ہیں وہ الزامات اور مقدمات بن گئے ہیں.
मुझे नहीं लगता कि उनको कहीं से भी अब कोई रिलीफ मिलेगी। जो अपने उनके जो सहूलतकार भी थे उसके लिए भी उन्होंने मुश्किलात पैदा जो की। GHQ पे हमला हुआ, जो कोर कमांडर हाउस चलाया गया, जो ISI के दफातर पे हमला हुआ, आर्मी तंसीबात पे, आपने इस पे अपने दुख का भरपूर इजहार किया है, गम गुस्से का इजहार किया है, लेकिन क्या आप समझती हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट्स ने, पुलिस फोर्सेस ने, दीगर फोर्सेस ने अपनी जिम्मेदारी अंजाम नहीं दी कि ये बलवाई, ये दहशतगर्द वहां तक ना पहुंच पाते? देखिए, जो दहशतगर्द होते हैं ना, वो अवाम नहीं होती, वो एक पूरी इमारत को, एक पूरे हजूम को जलाने के लिए 3 से 4 दहशतगर्द और कुछ पेट्रोल बम्स काफ़ी होते हैं। तो कौम के सामने इनका जो चेहरा आया है, और अगर कोई कहीं लैप्स हुआ है तो उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि क्यों लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उन्होंने इसको ढील दी। मरीम नवाज साहिबा की गुफ्तगू आपने सुन ली, एक्सक्लूसिव हमने उनसे कुछ सवाल जवाब किए। जो एक सवाल मैंने उनसे सबसे पहले किया कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट पर एक और हमला है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की तारीख में इस किस्म का एक हमला पहले भी मौजूद है जिस पे नून लीग अब शर्मिंदा है। मेरे साथ मौजूद है अंजुम अकील खान साहब यहाँ स्टूडियोज़ में। आज इस्लामाबाद में बड़े पैनाफ्लेक्स लगे हुए हैं, बड़े बैनर्स लगे हुए हैं अंजुम अकील खान साहब के, और बड़े सख्त किस्म की उस पर जो है वो नारेबाजी दर्ज है अदलिया के बारे में और दीगर मामलात के बारे में, जो मैं दोहरा भी नहीं सकती। तो क्या अंजुम अकील खान साहब पर कंटेम्प्ट तो नहीं लग सकती? शेख वकास अकरम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, वो भी हमारे साथ मौजूद है। नाज बलोच साहिबा थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बल्कि ज्वाइन कर चुके हैं। सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है पीपल्स पार्टी की नाज बलोच साहिबा। अंजुम अकील खान साहब, क्या ये सुप्रीम कोर्ट पर एक और हमला है? आप लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके एहतजाज कर रहे हैं और जिस किस्म की वहां पर एक बार फिर तकारीर हुई है, गिवन दैट कि आप लोग खुल के लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गए हैं, लेकिन क्या ये अब बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके जलसा करना, धरना देना, जिस किस्म के पैनाफ्लेक्सेस, बैनर्स लगे हुए हैं आपके नाम से आज इस्लामाबाद में पूरे, क्या ये सुप्रीम कोर्ट पर एक और हमला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो आप जानते हैं कि बिलखुसूस हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के सामने जाने में या रेड जोन में जाने में काफ़ी इज्तनाब कर रही थी। बहरहाल PDM थी, अक्सरियत ने जब कहा तो फिर हमें जाना पड़ा। पहली तो बात ये है, और दूसरी बात है कि ये हमने कोई हमला नहीं किया, हम तो वो रियलाइज़ करा रहे हैं कि आप ये गलतियां कर रहे हैं। तो उस रियलाइज़ कराने में अगर कोई उसे जो मतलब दे, लेकिन हमने रियलाइज़ कराया है कि आपने जो देखे ना, एक 2/3 वाले वज़ीर आज़म को 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका है, और जिसने मुल्क के लिए बड़े बड़े मेगा काम किए हैं, उसको एक अकामे पे आप फारग कर देते हैं। और वो एक जो बाकायदा दहशतगर्द अब वो साबित हो चुका है। हम पिछले तो जो रिलैक्सेशन उसको दी है वो आप जानते हैं कि BRTB में जो उनको जितना बड़ा तो घपला ये जमानतें तो आप लोग को भी मिलती रही हैं, आज भी मिलती हैं, हमेशा मिलती रही हैं, तो इसमें ऐसी एतराज करने की बात क्या? जमानत कानून का हिस्सा, कानूनी हक है इमरान खान का, जमानत अगर उनको मिल जाती है। नहीं, वो जमानतें ठीक हैं, जो जिस तरह जमानतें दी गई हैं, ये भी जमानतें तारीख में पहली दफा हैं। आप देखें जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने, जिस हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक मुलजम था, ठीक है जी, उसको बुला के जैसा कहा जाता है कि वेलकम, गुड टू सी यू, मर्सिडीज भेजी जाती है, तो ये एक मुल्ज़िम के साथ इससे पहले कभी हुआ है? एक मिनट होल्ड, मैं आपको याद करवा देती हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अदम एतमाद, अभी वज़ीर आज़म नहीं बने थे, अदम एतमाद हो रही थी, उसमें केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। इन्हीं चीफ जस्टिस साहब ने शहबाज शरीफ के बारे में भी ऐसा ही कहा था, इसी किस्म के अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि आपकी सलाहियतों पे पूरी कौम को एतमाद है, और शायद उनको ये भी कहा था कि आपके लिए नेक ख्वाहिशात। एतमाद और चीज है, बिलावल ये तो रिमार्क्स की आपने कहा, अगर इमरान खान के बारे में रिमार्क्स दिए तो इन्हीं चीफ जस्टिस ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बारे में भी रिमार्क्स दिए थे कि आपके चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट होती है, अच्छा लगता है। नहीं, वाज़ेह है कि केस का फर्क है। बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ साहब किसी केस में नहीं गए थे। अब्दम एतमाद होना वो एक जमहूरियत का हिस्सा है। बात यह है कि जिस पे 60 अरब की करप्शन साबित हो चुकी है। केसेस अलग तो थे, सियासी बयानिया उनके खिलाफ भी था कि ये मुजरिम है इमरान खान का सियासी बयानिया। बिलावल भुट्टो पे अपने केसेस नहीं थे, लेकिन जरदारी साहब पर तो थे। नहीं, सियासी बयानिया और चीज है, एक अमली तौर पे 60 अरब रुपए का एक घपला आपके सामने है कि किस तरह बाहर से आए, एक दोस्त मुल्क में वापस किए, और वो पैसे किधर गए, जो खजाने में जाने चाहिए थे वो किधर गए। आप बाकी तो छोड़ दें उनको, आपने बिलियन ट्री में जो उनके केस हैं सारे, कोई और होता तो आज वो नैब में होता,
तो वो उसको किसी ने नहीं पूछा। फॉरेन में फंडिंग में जो लेकिन है फायदा नहीं हुआ, आज बंदे नहीं निकले आपके पास, ज्यादा बंदे। नून लीग का तो मुश्किल से नून लीग के 15-20 बंदे थे, पीपल्स पार्टी खाते बिल्कुल भी कम, बिल्कुल आप कह सकती हैं 4 या 5 अगर आप बाहर जाके देखें, आपने अगर मैं देख के आई विजुअल बनाया तो मेरे पास मौजूद है, मेरे पास फोन में मौजूद है, विजुअल मौजूद है। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 सारे मौला 30,000 से ज्यादा लोग थे, और वो ज्यादा 5 से 6,000 लोग होंगे, और वो भी मौलाना के। मैं पंडाल की बात करता हूँ, मैं सारा वक्त पंडाल पे खड़ी रही हूँ, मरियम नवाज की स्पीच के दौरान नीचे लेटे हुए थे, गर्मी शदीद थी। बोला तो मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम पार्टियों को जिनके लोगों ने इस गर्मी में आके खड़े हुए, और 30,000 से कम नहीं थे, तो 5-6,000 तक रहे। 30,000 बहुत ज्यादा है। चले, लेट मी गो टू नाज बलोच साहिबा, देन शेख वकास साहब से भी सवाल करेंगे। नाज बलोच साहिबा, पीपल्स पार्टी ने क्यों डिस्टेंस किया आज के इस जलसे कम धरने से अपने आप को? बिलावल भुट्टो की तशरीफ लाए। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल डिस्टेंस नहीं किया। हमारी पार्टी की जानिब से वफ्द जो है वो बिल्कुल गया था, और जाके उन्होंने शिरकत भी की, तकारीर भी हुई। निसार खोड़ो साहब वहाँ मौजूद थे, हमारे सेनेटर्स मौजूद थे, हमारे पार्टी का पूरा एक वफ्द गया है। देखिए गरीदा, ये जो हालात और वाक़यात हैं, जो आज हम जिस नहज पे पहुंचे हुए हैं, एक अफरा तफरी और केओटिक जो सिचुएशन बनाई गई है, एक अनसर्टन माहौल जो बनाया गया है, इस तमाम अनसर्टनिटी का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है, और वो है पीटीआई के लीडर इमरान खान। मतलब ये कि पूरे मुल्क को जो है वो एक पूरे मुल्क पे धावा बोलकर अपनी जात, अपनी इंडिविजुअल को एक केस से बचाने के लिए, या अपने लातादाद जितने भी उन पे केसेस हैं उनसे बचाने के लिए उन्होंने इस कौम का जो 9 मई को नुकसान किया है। मैंने ऐसा कभी किसी सियासी जमात के सरबराह को ये सब करते नहीं देखा, या उनसे मंसूब होते हुए ये कार्रवाइयां नहीं देखी। पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब को जब गिरफ्तार करने, और पॉलिटिकली विक्टिमाइज्ड केसेस, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस, जो केसेस पीटीआई के दौरे हुकूमत में हुए, वो नैब के केसेस जिसमें खुर्शीद शाह को 2 साल तक कैद में रखा गया विदाउट प्रूविंग एनीथिंग ऑन हिम, वो केसेस जिसपे फरियाल तालपुर साहिबा को चांद रात को, ईद की रात को हॉस्पिटल बेड से घसीट के ले जाया गया, बावजूद इसके कि एमएस जो हॉस्पिटल के थे उन्होंने लिख कर दिया था कि उनकी हेल्थ कंडीशन अलाउ नहीं करती कि आप उनके साथ ये सब विक्टिमाइजेशन करके उनको इस वक्त हिरासत में लें, लेकिन एमएस को तब्दील किया गया रातों रात। ये पीटीआई ने किया, एमएस को तब्दील करके अपने मनमानी एमएस को लाके उधर से लिखवाया गया कि इनको जो है अलाउ किया जाए कि ये इनको बख्तरबंद में बिठाया जाए, और वो खातून थी। और हमने अपनी आंखों से देखा कि उन खातून को, वो साबका एमएनए भी रही हैं, जिला नाजिम 2002 से रही हैं, जरदारी साहब की भी बहन है, और उसके अलावा जो है उनकी पॉलिटिकल अपनी जदोजहद स्ट्रगल सिटिंग एमपीए हैं, लेकिन उनको बख्तरबंद में बिठाया गया। और हमने लेकिन इन सबके बावजूद ये ज्यादतियां हुई, लेकिन इन सबके बावजूद आप लोगों को जमानतें भी मिली, आप लोगों को सहूलतें भी मिली, आप लोगों के केसेस इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से सिंध में मुंतकिल भी हुए। तो यही चीज अगर इमरान खान को मिलती है तो 8 महीने तक उनको कैद रखा गया, महीनों तक कैद रखा गया, और फिर हर बार तो यानी कि आप लोग इमरान खान को कैद चाहते हैं, आप लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि एक दिन में इमरान खान को रिहाई न मिले, 8-8 महीने 4-4 साल इमरान खान जेल में रहे। को चादर और चार दीवारी याद नहीं आती थी। उस वक्त पीटीआई को याद नहीं आता था कि किसी के ऊपर पॉलिटिकली विक्टिमाइज केसेस आप तो इन चीजों के रिपरकशंस होते हैं, दूसरों के एहसासात मजरू होते हैं, अगलों के भी वर्कर्स हैं, वोटर्स हैं, वो नाराज होते हैं, उनमें गम और गुस्सा आता है। लेकिन हम पीपल्स पार्टी हैं, हम वो पीपल्स पार्टी हैं जिसने शहीद बीबी की तदफीन के फौरन बाद नारा लगाया, पाकिस्तान खप्पे। हमने खुदा ना खास्ता ये नहीं किया कि 25 किलोमीटर के मफासत पे जो है वाघा बॉर्डर है, और वहां पे जाके कोर कमांडर हाउस पे धावा बोल के जिना हाउस को आप जो है आग लगा दे और उस उधर से जो है तोड़ फोड़ करें। जो इमेजेस, जो विजुअल्स हैं, ये इस किस्म की घिनौनी साजिश अपनी अदारों के खिलाफ। और फिर जीएचक्यू में हमला, न सिर्फ ये गरीदा, स्कूलों को जलाया गया। ये अगर शरंगेजी पीटीआई इस शरंगेजी पे नदामत नहीं करती, माफी नहीं मांगती, जानवरों को जलाया गरीदा, 150 जानवरों को पेशावर में जिंदा जला दिया गया, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का असूल है?
یہ مجھے بتائیے جس طرح ہمارے تنصیبات کو اور وہ ایئر فورس وہ جنگی جہاز جن کو بھارت نہ گرا سکا ان جنگی جہازوں کو جلایا پی ٹی آئی کے ورکرز نے اور سپورٹرز نے, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ انتشار نہیں, اشتعال انگیزی نہیں, اور اس کے بعد ان سب تماشا بازیوں کے بعد جو ہے اگر کسی کو کہا جائے گڈ ٹو سی یو تو دل دکھتا ہے. ہم تو یہ توقع کرتے ہیں, ہم اپنے انصاف کے ادارے سے منصفوں سے توقعات, اعلیٰ توقعات رکھتے ہیں, اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے, عدالتوں سے انصاف کے لیے آج بھی ہم کٹکٹا رہے ہیں. آج تھرڈ جنریشن بھٹو خاندان کی ذوالفقار علی بھٹو پہ لگائے گئے غلط بے بنیاد الزامات کے اوپر آج بھی ریفرنس کی جو ہے یہ وہاں پہ بار بار در کھٹکھٹا رہی ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے. ہمیں انصاف نہیں ملا, لیکن ہم اپنے اداروں کی احترام کرتے ہیں, مگر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ انصاف کا جو ہے وہ صرف دکھائے, انصاف کہنے سے نہیں ہوتا, انصاف دکھائی دینا چاہیے. غریدہ میں آپ کے پاس دوبارہ سوال لے کے آتی ہوں. ایمبولینس سے ایڈی کی ایمبولینس سے مریضوں کو باہر نکال کے ایمبولینس جلا دیا گیا. پیپلز بس سروس کراچی میں نئی بس سروس متعارف کرائی گئی ہے. کیا ہم اس چیز کے متحمل ہیں کہ ڈنڈوں سے لے کے ڈنڈا بردار لوگ آ کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کریں؟ صرف ایک دن عمران خان جیل برداشت نہیں کر سکتے, دوسروں کو تو آپ نے 2-2 سال جیلوں میں ڈالا تھا. ہم نے نہیں بنایا یہ کیس. جو کیسز ہیں آپ کے یہ 60 ارب کا چھوٹا کیس نہیں ہے. اگر سمجھتے ہیں کہ بے قصور ہے, بے گناہ ہے, عدالتوں میں جائیں. جیسے آپ کے پاس واپس آتی کا سائن بنا کے جاتے. ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. دکھا ہوا ہے آپ کی باتیں درست ہے, یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اب سے کچھ دیر پہلے جب کہ آپ یہ سب باتیں کر رہی ہیں, کور کمانڈر کانفرنس آج ہوئی ہے, اس کا اعلامیہ ابھی جاری ہو گیا ہے, اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی باتیں کی گئی ہیں. بڑے شدید غم اور غصے کا اظہار کیا گیا ہے, اور آئندہ جن لوگوں نے کیا ہے ان کے ساتھ کس طرح نمٹا جائے گا وہ سارا اعلامیہ, اس پہ بھی ڈسکشن کرتے ہیں آگے چل کے. شیخ وقاص صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا شیخ وقاص صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. السلام علیکم. آپ نے سن لیا آپ کے دونوں یہاں پر فیلو پارٹیسپینٹس نے کیا کیا بات کی. ایک تو آج چیف جسٹس نے بھی کہا کہ مذاکرات کریں, قومی اتفاق رائے پیدا کریں. کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ ابھی جاری ہوا ہے, وہ بھی کہہ رہا ہے کہ قومی اتفاق رائے پیدا کریں, تمام سٹیک ہولڈرز مل کے بیٹھیں. یعنی کہ ملک کے ریاست کے 2 بڑے ادارے زور دے رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کریں, عدلیہ اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ. سو پاکستان تحریک انصاف دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار ہے شہباز اور زرداری صاحب سے. شیخ وقاص صاحب, میں سن نہیں سکا آخر میں آپ نے کیا کوشچن کیا کیا. I heard everything but جی میں سوال دہرا دیتی ہوں آپ کے لیے. میں سوال یہ کر رہی تھی کہ آج چیف جسٹس نے بھی کہا کہ مذاکرات کریں اور قومی اتفاق رائے پیدا کریں. کور کمانڈر کانفرنس کا بھی اعلامیہ ابھی جاری ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی تمام سٹیک ہولڈرز قومی اتفاق رائے پیدا کریں, مل کے بیٹھیں. یعنی کہ ریاست کے 2 بڑے ادارے عدلیہ, اسٹیبلشمنٹ, آرمی, وہ زور دے رہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز مذاکرات کی ٹیبل پہ واپس آ جائیں. پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے. ونس اگین ود شہباز اینڈ زرداری صاحب. دیکھیں پہلی بات یہ ہے, میں بڑے واضح پہلے چند چیزیں جو میرے ان 2 کولیگ نے کی ہیں میں اس سے کر کے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. پہلے تو جو بار بار عمران خان صاحب کو دہشت گرد اور فتنہ کا لفظ استعمال کیا, میں اس لفظ کی مذمت کرتا ہوں. کسی کے کہنے سے نہ کوئی فتنہ بن جاتا ہے, نہ کسی کے کہنے سے کوئی دہشت گرد بن جاتا ہے. دنیا اس بات کی گواہ ہے. اگر کلعدم سپاہ صحابہ کے ساتھ, کلعدم جماعتوں کے ساتھ کسی نے اتحاد کیا تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا. میرے سے زیادہ ان کی ہسٹری کو نہیں جانتا. اگر عرفان صدیقی کو کمیٹی کا ہیڈ بنا کے تحریک طالبان یعنی کہ دہشت گرد, یہاں ایک آپ کے پارٹیسپینٹ نے کہا بھی دہشت گردیوں سے بھی, بلکہ میں نے آپ کی مریم نواز کے ساتھ گفتگو سنی, دہشت گردیوں اور پلوائیوں سے کوئی کرتا ہے مذاکرات؟ وہ عرفان صدیقی کو کس لیے بھیجا تھا آپ کے ابو جان نے؟ کیوں تحریک طالبان نے؟ آپ تو یہاں کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جلائی گئی تنصیبات جن کے اوپر میں بھی آ کے بات کرتا ہوں, انہوں نے تو یہاں بم بلاسٹ کیے. ہمارے بچے, ہماری عورتیں, ہمارے لوگ. اے پی ایس کا واقعہ دیکھیں, پشاور مینا بازار کا واقعہ دیکھیں. اس کے بعد آپ نے کمیٹیاں نہیں بنائی, جا کے آپ نے تحریک طالبان کے ساتھ بیٹھ کے وہ نہیں کیے. آپ کہتے ہیں دہشت گردوں سے. پہلے تو آپ ایف آئی آر کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی آر کسی کے اوپر دینے سے دہشت گردی کی, دہشت گرد بن جاتا ہے, تو پھر تھوڑے تو چوری دیا 700 ایف آئی آر نے, پھر تسی کیڑی گل دا گلا کرتے ہو؟ پھر منو اپنے آپ چور. اگر صرف ایف آئی آر سے کوئی بندہ چور بن جاتا ہے یا ایف آئی آر سے کوئی بندہ دہشت گرد ہو جاتا ہے
FIR लेकिन के लेकिन बाद जो लेकिन है शेख वक़ास साहब एक सवाल की इजाज़त देंगे, आप बड़े मंझे हुए सीनियर सियासतदान हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उन सब को जस्टिफाई नहीं करेंगे जो GHQ पे हमला हुआ, जो जिना हाउस / को कमांडर हाउस को जलाया गया, जो शोहदा की तस्वीरों की बेहुरमती की गई, जो जंगी यादगारों को जलाया गया पाकिस्तान के लिए जो एक वक़ार की अलामत है, ISI के दफातर पे जो हमले किए गए। मुझे उम्मीद है कि आप इन सब को जस्टिफाई नहीं करेंगे। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जी, क्योंकि मैंने ये बात इसलिए नहीं छेड़ी, पिछले 3-4 दिनों से मैं यही गुफ्तगू टीवी के ऊपर कर रहा हूँ। मैंने समझा कि आज टॉपिक आगे आ गया तो शायद मैं फिर भी क्लैरिटी के लिए कह देता हूँ। कोई जी शऊर आदमी। अच्छा शेख वक़ास साहब, माजरत आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक ब्रेक का वक्त हुआ लाइव प्रोग्राम में। मैं चाहती हूँ कि आपका ये जवाब मुकम्मल आ जाए, एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं जी, शेख वक़ास साहब का मुकम्मल जवाब लेते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शेख वक़ास साहब, अगर आप हमारे साथ हैं, आवाज़ आ रही है, जवाब आपका ड्यू था। जी मैं आपको यही कहना चाह रहा था, कोई ज़ही शऊर आदमी किसी के घर की सैंक्टिटी जो है वो डिस्ट्रॉय होने को जस्टिफाई नहीं कर सकता, और उसको मैं भी जस्टिफाई नहीं करूंगा। मैं समझता हूँ कि सैंक्टिटी चाहे जना हाउस की हो, चाहे कोर कमांडर की हो, हिस्ट्री और नो हिस्ट्री, जिसमें कोई रहता है वो उसका घर है, वो ज्यादा अहम है। चाहे वो परवेज इलाही के घर की हो, चाहे वो इमरान खान के घर की हो, चाहे वो नवाज शरीफ के घर की हो, वो सब इम्पोर्टेंट है। उसका एहतराम एक बराबर है और ऐसा ही होना चाहिए। सो कोई जी शऊर पढ़ा लिखा आदमी इस बात को जस्टिफाई नहीं करेगा और ये नहीं कहेगा कि अच्छा हुआ। बट हम इससे भी नहीं भाग सकते कि वो एक रिएक्शन था, लीडर सारे अंदर थे, कोई उनको शायद सही रास्ता बताने वाला नहीं था, गुस्सा था, एंगर था, लेकिन लीडर्स ने कंडेम भी नहीं किया। सो मच सो कि शाह महमूद तो ये कहते रहे कि जी एक कुदरती अमल है, देखिए मुझे नहीं पता कि मीडिया वाले कौन से लीडरों से कंडेम कराना चाहते हैं और कितने लीडरों से कराना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो उस दिन से बैठा टीवी के ऊपर कह रहा हूँ कि दिस वाज अनफॉर्चुनेट, सैड, और ये इवेंट्स ना होते अगर गवर्नमेंट जो है वो इस किस्म की हरकत ना करती। इन्होंने यहाँ पे नैब का जिक्र किया, इन्होंने यहाँ पे मर्सिडीज का जिक्र किया। इनको मर्सिडीज याद है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिस वक्त साद रफीक को लाहौर में नैब उठा के ले गई थी और बहुत महीने अपना मेहमान रखा, तो उनको भी एक प्राडो जीप और लैंड क्रूजर के ऊपर लेके आया करते थे। शायद इनको ये भूल गया है। हर इदारे का एक अपना अपना तरीकेकार है। जहाँ तक इनको जजेस के और रवैयों का ताल्लुक है, शायद मेरे ख्याल में जो वकील साहब अदालतों में नहीं गए, इस किस्म की गुफ्तगू चलती रहती है। एक का आपने खुद जिक्र किया, मैंने अभी सुना। सो मैं ये समझता हूँ कि जो आपका ओरिजिनल सवाल था उस पर आते हुए, इन चीजों का फायदा कोई नहीं है। चीजें गलत तरफ गई हैं, चीजें मुल्क खाना जंगी की नहज के ऊपर पहुंच रहा है। आज आपने ये देखा जो इन्होंने कॉल दी है, अब इसके मुकाबले पे आज वो इधर की हम कॉल दिए बैठे होते तो फिर क्या तमाशा होना था यहाँ। ठीक, तो यानी कि PTI तैयार है मुज़ाकरात के लिए बैठने पर, अब इसके बाद बैठेगी। देखिए PTI के लीडर्स पहले दिन से कह रहे हैं, और खसूसन 3-4 महीने तो खान साहब 1 महीने में 3 दफा कह चुके कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मगर अपने ज़हन में रखेगा कि स्टेक होल्डर सिर्फ जरदारी या PMLN नहीं है। ये PMLN बेचारे तो ये तो मौके की पैदावार है इस वक्त। इनके तो हालात या इनका तो इख्तियार ही कुछ नहीं है। इनकी आप निजी महफिलों में गुफ्तगू सुने, जो डेफिनेटली आप बड़ी वेल इन्फॉर्म्ड एंकर हैं, वो आपको खुद पता चल जाएगा किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर सबको बैठना पड़ेगा। सिर्फ जरदारी, नवाज शरीफ या PTI के बैठने से इस वक्त हालात जिस नहज पे पहुंच गए हैं वहां से ठीक नहीं होने लगे। ठीक, ये इस तरह नहीं होगा। यानी कि आप एक नेशनल डायलॉग चाहते हैं कि जिसमें तमाम इदारे भी शामिल हों, जमानती बने, गारंटर बने। इनके पल्ले क्या है, इन दोनों पार्टियों के पल्ले क्या है? ये तो निगरान हुकूमतों के ऊपर डाल के भाग जाते हैं। एक तरफ मरियम नवाज साहबा, आज से चंद महीने पहले आपको याद होगा, मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आपने उनकी गुफ्तगू सुनवाई, वो कहती मेरा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। फिर एक जगह उन्होंने कहा मेरा मेरे मियाँ से कोई ताल्लुक नहीं, वो जो मर्जी कह रहे हैं। आज वो हुकूमत की बहुत बड़ी तर्जुमान बनी हुई थी कि कहाँ से गिरफ्तार करें जी, वहां से ना गिरफ्तार करें तो कहाँ से गिरफ्तार करें। तो जिसले थोड़े वारे चोवे उसले तुसी हुकूमत के तर्जमान हो, तो जिसले अवाम की ऐसी तैसी फिरता है उसले तुसी कहते हो हुकूमत नाल सारा ताल्लुक ही कोई नहीं। ये तमाशा, पीपल आर नॉट फूल। क्या PTI गारंटर चाहती है अदलिया को या एस्टैब्लिशमेंट को? हम कोई गारंटर नहीं चाहते। हम तो सिर्फ एक इलेक्शन चाहते थे, सिर्फ एक इलेक्शन चाहते थे। नहीं, अभी मुज़ाकरात के लिए, अभी आपने कहा ना कि बाकी इदारे, अदलिया भी शामिल हो, एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल हो, गारंटी चाहते हैं क्या? जो खुद बार बार कह रहे हैं डायलॉग करें, वो बीच में बैठे ना। अब तो सारे पार्टी बन गए हैं। हाँ, लेकिन फिर क्या गारंटी है? कल आप देखे ना, मेरी बात सुने, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। एक इल्जाम लगा रहा है कि जी अदलिया इनके पीछे खड़ी है, दूसरा घर कहता है कि जी फौज आपके पीछे खड़ी है। अब फौज और अदलिया दोनों कहते हैं कि जी तुम तीनों आपस में बैठ के गपशप कर लो। इस तरह भी रौला मुकता है कोई?
इस तरह नहीं होगा, क्योंकि लेकिन- इसका कोई अंजाम ही नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इन दोनों इदारों को बिठाना चाहते हैं तो फिर क्या गारंटी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में या नतीजा अपने नाकाम, देखिए, नतीजा आप अपनी अगर मंशा के आइन मुताबिक को- ना होने पे किसी इदारे को मैलाइन नहीं करेगी, देखिए इसकी ना, गारंटी ये क्या? पाकिस्तान है ना, हमने आइन की गाइडलाइंस जो है उसकी उसमें डायलॉग करना है ना जी, हमने आइन से बाहर रह के तो नहीं करना। ठीक, और अगर हर इदारा आइन के अंदर अब रहते हुए डायलॉग करेगा तो मैं समझता हूँ कि कभी भी कोई मायूस नहीं होगा किसी से, और चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ठीक, मगर आइन जो है उसमें एक सोर्स होना चाहिए जिसकी रोशनी में सारी बात होनी चाहिए, ठीक, ठीक, बिल्कुल क्योंकि ठीक, पार्टियों को गरीजा खत्म नहीं किया जा सकता है। भुट्टो की राइट, शहादत, एब्सोल्युटली राइट, उसके बाद बेनजीर की बिल्कुल शहादत ठीक कह रहे हैं आप, पीपल्स पार्टी को खत्म नहीं कर सकी। बिल्कुल ठीक नवाज कह रहे हैं। शरीफ को 2 दफा पकड़ के बाहर निकाला, नून लीग को आप खत्म नहीं कर सके। और आपको मजे की बात बताऊं, इनको मर्सिडीज की और लाडला के मुझे कह रहे थे, और इनको मर्सिडीज, अल्लाह के बंदो, आपके लिए तो रॉयल जेट आए थे। इमरान खान को तो कहीं सजा नहीं हुई, आपके लीडर को तो सजा हो गई थी। सजा होने के बाद आपको पैंट सूट पहना के ना, सुबह अच्छे कफलिंग्स लगा के, अंगूठा दिखा के पूरी कौम को, आपको रॉयल कतरी एयरफोर्स के, दैट वाज नॉट एन एयर एम्बुलेंस, लोगों को फूल बनाया गया, दैट वाज रॉयल कतरी एयरक्राफ्ट हु केम एंड हु टुक यू। सजा हुई हुई है। इमरान खान के तो 95 केसेस में ट्रायल भी शुरू नहीं हुए, जमानते हैं, ट्रायल भी शुरू ठीक, नहीं है ठीक। 95 के। अंजुम वकील साहब मुस्कुरा रहे हैं। जहाज से चढ़ के नहीं, थोड़ा जहाज से चढ़ के थोड़ा सजाला बंदा चला जाए, वो लाडला नहीं। अंजुम वकील मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे, तो इसका जवाब इन्हीं से लेते हैं। अंजुम साहब, एक तो इसका जवाब, पूछे इनसे। अंजुम साहब इसका जवाब दे दीजिए। बड़ी मजेदार बात की है शेख वकास साहब ने। और दूसरा, एतमाद नहीं आपके ऊपर पीटीआई को मुज़ाकरात करने के हवाले से कि आप लोग कोई संजीदगी दिखाएंगे, लेकिन अदलिया भी कह रही है, अब एस्टैब्लिशमेंट ने भी कह दिया कि बैठे आप मुज़ाकरात की टेबल पर। देखें जी, मुज़ाकरात भी होते हैं, एतमाद भी होता है, कुछ सियासी जमातें हों तो ये पीटीआई अगर 4 साल हुकूमत ने ली है तो वो खुद उन्होंने कहा है, फवाद चौधरी का आप बयान सुने, कहते हैं वो हमने तो हुकूमत मुस्तार दी हुई थी। इमरान खान के खुद बयानात देखें, वो कहते हैं हमने तो हुकूमत की नहीं, हुकूमत कुछ और लोग करते रहे, हमें वो जो कहते रहे हम करते रहे। तो इन्होंने हुकूमत की नहीं, हुकूमत करते तो पता होता कि हुकूमत कैसे होती है, मुल्क क्या चीज़ होती है। तो अब ये मैं तो ये आप ये समझें कि जो इसकी अब इनको थोड़ा सा मौका मिला है, तो जो इन्हें कारकर्दगी दिखाई है, जिस तरह आपके सामने है, कोर कमांडर हो, उस GH के हो, जना हो, उससे पुलिस की गाड़ियाँ और बेशुमार पुलिस स्टेशन, कोई चीज़ नहीं, इत्तबा कर दिया मुल्क को ना। इससे पहले एक इन्होंने रैली निकाली थी, जो भी आपके इल्म में है कि किस तरह आपने ये सारा ब्लू एरिया और सारा इन्हें जला दिया था। तो ये देखें, हमने भी एक इससे पहले बहुत बड़ा रैली निकाली थी जो रजिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशरी के लिए। कोई वहाँ चीज़ नुकसान हुई? मौलाना साहब ने इससे पहले निकाली, कोई चीज़ नुकसान हुई? एक पत्ता भी टूटा, एक टहनी भी टूटी, आज फिर हुआ। तो आज ये सियासी जमातों का ये वतीरा होता है, ये तो एक हजूम है, ये सियासी जमात है ही नहीं। तो इसलिए मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मेरे ख्याल में इससे मुज़ाकरात करने में कोई फायदा नहीं है। तो सियासी फिर जमात होती है, फिर कहाँ जाएंगे? फिर आप स्टक हो गए इस वक्त बहरान के अंदर। हम स्टक नहीं हुए। ये एक यकीन करें झूम है, ये पार्टी नहीं है। इसको अपने मुल्क का कोई इस स्वाय इनको हमें इक़्तिदार मिल के इसके अलावा कोई इनको चीज़ नहीं चाहिए। इसलिए मेरे ख्याल में ये एक सियासी पार्टी होती तो उनके लिए ये था कि आज नहीं तो कल हमें लोगों के सामने जाना है। अभी देखें, हमें लोग इलेक्ट करके भेजते हैं 5 साल के लिए कि हमारे जाके मसाइल बयान करेंगे, हमारे मसाइल का हल देखेंगे, डिस्कस अपोजिशन में आया तभी जो गलत काम हो रहे हैं उनकी निशानदेही करेंगे। और ये रिजाइन दे रहे हैं जी, और रिजाइन देते हैं। इन्होंने असम्बली को मजाक समझा है, इनको पता ही नहीं है कि असम्बली और मुल्क और हुकूमत क्या चीज़ होती है। उस मजाक में आज मुल्क के इन्होंने, और मज़े की बात यह है कि गलतियों ने खुद की और आज पछता भी रहे हैं। अब कहते हैं कि ये हमने गलतियां की हैं, हम वापस आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। बात यह है कि इनको ये पता नहीं है कि जमहूरियत, इलेक्शन और एक मेंबर पार्लियामेंट क्या हैसियत होती है इसकी, उस पर लोग कितने लोग उससे उम्मीदें रखते हैं कि हमारा नुमाइंदा जाएगा, हमारी क्या कुछ करेगा। तो इनके हालात ऐसे हैं। बाकी ये कहते हैं ना जी कि नवाज शरीफ को सहूलियत दी की, नवाज शरीफ वो है जिसको जहाज के साथ बांधा गया था, उसकी सीट के साथ बांधा गया था, जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रहा है। और तीनों दफ़ा नवाज शरीफ को तो आज पूरा मुल्क
शुक्रगुजार है कि तीनों दफ़ा हमें काम भी नहीं किया करने दिया गया और तीनों दफ़ा हमने वो मेगा प्रोजेक्ट किए हैं मुल्क जो आज पाकिस्तान की पहचान है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं नाज बलोच साहिबा से, मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हैं पीपल्स पार्टी, और दूसरा जो चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस, पीपल्स पार्टी कहाँ पे स्टैंड करेगी, इन दोनों सवालों पे जवाब लेते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज बलोच साहिबा, अदलिया भी कह रही है, चीफ जस्टिस ने भी कह दिया, मुज़ाकरात कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने, आर्मी ने भी कह दिया कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें। व्हाट वुड पीपल्स पार्टी से ऑन दिस? देखिए, पीपल्स पार्टी हैज कैटेगोरिकली गिवन द स्टेटमेंट एंड द व्यूज एंड ओपिनियन। आज जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में क्लियरली ये बात कही कि जब तक पीटीआई माफी नहीं मांगती 9 मई को होने वाले उन नुकसानात का जो इन्होंने इदारों के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई, जिस तरह से सोशल मीडिया पे गलत ट्रेंड चलाए गए, जिस तरह भारत को खुश किया गया, जिस तरह फौजी जंगी जहाजों को जो कि यादगार के तौर पे वो तनसीब किए गए थे, उनको जिस तरह जलाया गया, जिस तरह कोर कमांडर हाउस के अंदर घुसकर जाके वर्दियों को की इंसल्ट की गई, फौजी वर्दियों की, अपने ही मुल्क की, अपनी ही रियासत की, वो फौज जो आपको बॉर्डरों पे दिन रात एक तरह फौजी जवान हमें हमारे दिफा कर रहा होता है। तो ये जो नुकसान मैं समझती हूँ कि भारत इतने सालों में ऐसी शरारत पाकिस्तान में आके नहीं कर सका और जुर्रत भी नहीं कर सका जो शरारत पीटीआई के एक दिन के लीडरशिप के जेल जाने के ऊपर तमाशा बरपा हुआ। ये जो 3.5 साल, अच्छा मुझे एक बात बताइए गरीब, आप यही GHQ इमरान खान की हुकूमत में तो इनको एहतराम करना आता था, यही कोर कमांडर हाउस का इनको एहतराम पता था, वैल्यू पता थी, रिस्पेक्ट पता था, ऑनर पता था इनको, क्योंकि ये तब एक पेज की बातें करते थे, तब इनको बाजवा साहब बहुत अच्छे लगते थे, तब ये 1 पेज की बातें करते थे, जी हम एक पेज पे हैं, एक पेज पे हैं, एक पेज पे हैं। फिर जो वेस्ट की डेमोक्रेसी के बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले, दावा करने वाले, जब अदम एतमाद पे शिकस्त हो गई, तो होना चाहिए था कि वेस्ट में जिस तरह साल में 3-3 दफा अदम एतमाद को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट किया जाता है, ये भी उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं और अपोजिशन आके करते हैं। इन्होंने 10 माह तक इस्तीफे दिए, उसके बाद आके इन्होंने कहा कि जी थूका हुआ, जो कहते हैं ना मुहावरा है, थूके को चाटना, इन्होंने फिर खुद इस्तीफा देके 10 माह बाद आके इनके आज तक MNAs आ रहे हैं। पूछे हमारे स्पीकर से इनके कौन कौन से MNAs आज तक आके इल्तिजा कर रहे हैं, कि गुजारिश कर रहे हैं कि जी हमें दोबारा पार्लियामेंट आने दें, हम आपकी जो है हिमायत करते हैं, हम जो है पीटीआई के दिए हुए इस्तीफा गलती में जल्दबाजी में दिया और हम दोबारा आना चाहते हैं। तो मुझे बताइए कि ये सारे तमाशे जो पीटीआई ने किए और जो नुकसान पहुंचाया, आप देखें कि इस वक्त कैम्ब्रिज की स्टूडेंट्स जो है उनकी इवैल्यूएशन जो होगी वो एवरेज को देखकर, एक पेपर को देखकर होगी। ये जो नुकसान इन्होंने स्टूडेंट्स का, तालिब इल्म का, अस्पतालों का, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को जलाना, तनसीबात पे हमले करना, कोर कमांडर हाउस GHQ में हमले करना, ये जो सारा इन्होंने तमाशा किया, उसके ऊपर नदामत है। इन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने कहा कि जी ये रियासत पाकिस्तान है, ये हमारे मुल्क की दिफाई इदारे हैं, इनकी इज्जत एहतराम जो है आपको करना जरूरी है। आज इंडिया बैठ के तमाशा कर रहे हैं और आप देखते होंगे कि इंडिया में कैसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। वो कह रहे हैं खुल्लम खुल्ला कि जो काम हम नहीं कर सके वो तो इमरान खान की पार्टी ने कर लिया। तो मैं समझती हूँ कि ये जो अवाम में नफरत की सियासत के बीच पीटीआई ने बोए हैं, ये बहुत खौफनाक है। इससे इनको बाज आना चाहिए। मजाकरात की बात, टेबल टॉक की बात अब तो उसी वक्त होगी जब ये अपने इस तमाम जो ये शर्मंगेजी फैलाई, इस पे माफी मांगे। जस्ट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जस्ट सप्लीमेंट्री पॉइंट, जिनकी तनसीबात जली हैं, यानी कि जिनकी तनसीबात जली हैं आर्मी की, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नाज बलोच साहबा कि जिनकी तनसीबात जली हैं आर्मी की, उनका जो प्रेस रिलीज आया है उन्होंने कंडीशनल नहीं किया, वो कह रहे हैं कि इस बहरान को खत्म करें। दोनों सेपरेट मामलात पे बात की गई है। जो तनसीबात जलाई गई हैं उस पर गम गुस्से का इजहार भी किया और कहा है कि उस पर कार्रवाई होगी आर्मी एक्ट के तहत वगैरह वगैरह, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि जो स्टेक होल्डर्स बैठ के कौमी इत्तेफाक के राय से इस बहरान को हल करें। तो जिनकी बिल्डिंग्स, जिन पे हमले हुए हैं, वो कंडीशनल नहीं कर रहे, तो पॉलिटिकल फोर्स क्यों कंडीशनल कर रही है फिर माफी से? रियासत पाकिस्तान की है, ये जिना हाउस रियासत पाकिस्तान का है
उस पे हमारा उतना ही दिल दुखा है जितना किसी हमारे फौजी जवान का दिल दुखा होगा। हम हमारा दुख लेकिन equal आर्मी है। कंडीशनल नहीं कर रही ना कि माफी मांगे इमरान खान तो फिर मुज़ाकरात हो। रेडियो पाकिस्तान की इमारत है, रियासत पाकिस्तान की बिल्डिंग है, उसको छोड़ दें। जो आम सिविलियन के साथ हुआ, जिन मरीजों को एम्बुलेंस से निकाल के एम्बुलेंस जलाए गए, आप मुझे बताइए उन तमाम पीपल्स बस कराची में जो है, जो KWSB की जो गाड़ियां हैं, उनको व्हीकल्स को जलाया गया। ये मुझे बताएं, पूरे ATM मशीन उखाड़ के ले जाए गए। और फिर ये तमाम तमाशा अगर हुआ, इसको हम अगर मट्टी पाव कर दें तो फिर उसमें ये होगा कि आइंदा जो है ये एक खौफ इन्होंने तारी कर दिया है कि इनको अगर हाथ लगाओ तो ये अनटचेबल है, इनके ऊपर ना कानून लागू होगा, ना इनको कोई हिरासत में ले सकता है, और इनको आम छुट्टी और खुली माफी दे दी जाएगी। इस तरह होता नहीं है। अगर आप कोई अगर कहीं कोई जिम्मेदारी आप नहीं लेते तो फिर मेरा ख्याल है, देखिए पहली बात तो PTI को अपने ऊपर से ये धब्बा हटाना होगा। मेरा ताल्लुक शहर कराची से है गरीदा, मैंने बड़ी तकलीफें कराची शहर के लिए हमने देखी हैं। हमने देखा अपने शहर को जलते हुए, हमने देखा 30 साल हमारा शहर जलता रहा, ऑन ऑफ का बटन हुआ करता था, हड़तालों के नाम पे लोगों की जानें चली थी। उस खौफ के बुत से बाहर निकल के आज कराची में अमन अमान है। लेकिन आप मुझे बताइए कि कब तक एक ऐसी नई पार्टी दोबारा जन्म लेगी जो फिर ऑन ऑफ का बटन दबाएगी और कहेगी जी हमें अगर हाथ लगाया तो फिर हम जो है वो शहर में लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे। खुदारा पाकिस्तान में नफरत की सियासत की कोई जगह नहीं है। तमाम पॉलिटिकल बात पे एक है सिवाय PTI के। PTI ने यही वो ट्रस्ट डेफिसिट है नाज बलोच साहिबा, जिसको पॉइंट आउट करते शेख वकास अकरम साहब कि कोई उनको उम्मीद नहीं है मुज़ाकरात होने की। आई हैव टू गो टू शेख साहब एज वेल। जी नाज साहिबा। When they were in power, उस वक्त इनके अंदर गुरूर और तकब्बुर कूट के भरा था। जब ऑपोजिशन की फ्रंट 2 बेंचेस को इन्होंने जेलों में डाला था और नैब की कस्टडी में किसी पे मंशियात डाल देते थे, किसी पे कुछ डाल देते थे, उस वक्त ये लोग ये सेलिब्रेट करके एंजॉय करते थे उस चीज को। हम कहते थे कि ये अच्छी बात है, हमने तो नैब में तरामीम की है, वगरना अगर वो नैब होता जो ये छोड़ के गए थे, फिर तो 3-3 महीने 4-4 महीने जो है वो लोग इसी तरह से अरेस्ट होते। हमने तो उसको कम कर दिया उसके ताकि जस्टिस ना। ठीक है शेख वकास साहब, यही वो ट्रस्ट डेफिसिट नजर आ रहा है और पीपल्स पार्टी ने कंडीशनल कर दिया कि आप माफी मांगे पहले 9 मई। पहली बात तो ये है, मेरे इन दोनों भाइयों को ना शायद गलतफहमी होगी है, सॉरी मैडम नाज को भी और अकीब साहब को भी शायद गलतफहमी होगी है। उन्होंने आपका सवाल और मेरा जवाब नहीं सुना। मैंने ये नहीं कहा कि हमें बड़ा शौक है किसी से मुज़ाकरात करने का। आपने एक सिनेरियो, एक सवाल मेरे सामने रखा कि अदालत और फौज दोनों के एलानियों में से ये बात आई है तो मेरा क्या ख्याल है, तो उसमें मैंने अपनी ओपिनियन दी। बाकी अगर कोई कहे भी पहले माफी मांगेंगे तो माफी मांगना इनका ख्वाबो ख्याल है। इनसे कोई माफी मांगेगा या इनके कहने पे कोई माफी मांगेगा, या वो दूसरे जिनका लीडर जो बाहर बैठा हुआ है, अपने भाई की हुकूमत भी आ गई है, वापस नहीं आ रहा, इनसे कोई माफी मांगेगा? इनका दिमाग खराब हो गया है। ऐसे नहीं होगा। मैंने आपको अपनी राय दी कि अगर वो दोनों इदारे ये कह रहे हैं तो ये नेशनल डायलॉग होना चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम मरे जा रहे हैं ये करने के लिए। जो चीजें गलत हुई गरीदा वो आई कंडेम, वो गलत हुई है, उसको कोई जी शौक आदमी नहीं कर सकता। हाँ, जहां तक ताल्लुक है कि जी हमने तो ऐसा कभी नहीं किया, और जब जरदारी ने जिस वक्त सिंध जल गया ना 8वें-10वें दिन, आप भी उस वक्त मुझे याद है रिपोर्टिंग किया करती थी, अगर आपको याद होगा तो जलने के 10 दिन के बाद जरदारी को पाकिस्तान खपे याद आया। और ये जिन गाड़ियों का जिक्र कर रही थी ना, वो सारी गाड़ियां उस वक्त भी जली, और ये जिन ATM का जिक्र कर रही थी वो ATM उस वक्त भी उखाड़े गए, उस वक्त भी कई बंदों की लाशें गिरे। आप भी जरा खामोश रहे, आप जरा खामोश रहे, बहुत बोलिए आपने। और दूसरी बात, ये जो आज जो वो जो धरना बार दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी कानून पसंद पार्टियां, आपने इनकी शक्लें देखी है। इन्होंने 144 इमरान खान की पार्टी के लिए है मगर इनके लिए नहीं है। रेड जोन एक्सटेंड किया जाता है इमरान खान के लिए मगर इनके लिए नहीं है। ये नवाज शरीफ की पार्टी ने अपनी वही रियायत बरकरार रखी। और आपको एक और मैं मजे की बात बताऊं, तादाद तो आपने खुद बता दी, मैं किसी के साथ कंटेस्ट नहीं करूंगा, मैं इस वाले में नहीं पढ़ता कितने बंदे यार कितने नहीं। पंजाब के अंदर सरहद में से तो ये मदरसों में से बच्चे उठा के लाए ना। पंजाब के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स ने, हर जिले के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर्स ने, तहसीलों के अंदर लोगों को ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट करके दिए, उनको पैसे दिए, वहां पे बंदे इकट्ठे करके दिए। जो पंजाब से चंद हजार लोग आए वो सरकार ने इनको इकट्ठे करके दिए। ये इस काबिल भी नहीं है कि ये अपनी प्रोटेस्ट जो है वो खुद अरेंज करा सकें। और किस तरह फैसिलिटेट, और मैं आपको आप कहेंगे ना तो मैं उससे पूरा प्रोग्राम आपको पूरे सबूत ला के दूंगा किस तरीके से किस जिले में कितने कितने पैसे दिए गए बसों को। वो डिप्टी कमिश्नर ने कहां से दिए, कौन से फंड में से निकाल के दिए, कैसे ये लोग यहाँ पे पहुंचे।
ये मजाक बना रहे हैं इसका। इस तरीके से जो स्टेज मॉक एहतजाज होते हैं ना, वो रिजल्ट नहीं लाते। आप जितनी मर्जी कहानियां सुना लें, ऑडियंस ही कोई नहीं है। इमरान खान जिस ऑडियंस से बात करता है वो इस मुल्क का मुस्तकबिल है। आप जिस ऑडियंस से बात करते हैं उस ऑडियंस के बच्चे उनके काबू में नहीं है। राइट, उस ऑडियंस के बच्चे उनके काबू में नहीं है। राइट। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में मुज़ाकरात अगर हो जाएं और तमाम स्टेक होल्डर, मैं दोबारा सीधा कहूँगा, फौज, अदलिया, पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के कहें कि हमने इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है या नहीं चलाना है, इसका फैसला होना है। कोई नहीं, केसेस होते रहते हैं, केसेस खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर भी बगावत के केसेस भी थे, डकैतियों के केसेस भी थे, चोरियों के। आपने पिछले पूरे 1 साल में देखा नहीं? ठीक है, अदलिया को कहते हैं लाडला गवार आपके गायब हो गए, 13 केसेस आपके खत्म हो गए, इसहाक डार के केसेस खत्म हो गए, मियां नवाज शरीफ के केसेस खत्म हो गए, मरियम का केस खत्म हो गया, फरियाल बीबी के केस खत्म हो गए, वो एलसीज वाले केस खत्म हो गए। तो भी तो इंसाफ मिले साल अचानक इंसाफ का कर भी था है, खत्म हो गया। टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब आपके वक्त के लिए, नाज बुल्लो साहिबा आपके वक्त और गुफ्तगू के लिए, अंजुम मुफ्ती साहब आपके भी वक्त और गुफ्तगू के लिए बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। आज से इंशाल्लाह टुमारो एट 8 o'clock। अल्लाह हाफिज़।